everyone, this is me, your friend Abad Rahman, and welcome back to my YouTube channel. I hope you will be doing great. So today I'm going to show you my project that I have designed in the course of Computer Communications and Networks under the supervision of our professor and teacher, Mr. Irfanius Mughal. Here is the introduction, actually the official introduction from the website of Sakkara University. He is actually the assistant professor and he is currently pursuing his PhD in the satellite communications. So here is my project and network topology of my project, and here is the report. Basically, my project is about the metropolitan area network simulation using the Cisco Packet Tracer. So before going to demonstration of my project and the simulation, I would like to introduce you my report and the terms, especially I have used in my project. I would like to get familiar to all of you that which kind of terms and the terminologies I have used in my project especially. So basically, first of all, what is the metropolitan area network, which is commonly abbreviated as MAN, capital MAN. So basically, the metropolitan area network is the network that interconnects users with the computer resources in a geographic area or region larger than that covered by even a large local area network (LAN), but smaller than the area covered by the wide area network. So it was a simple definition of metropolitan area network. Basically, जो हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा और वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है, तो उसको अमूमन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है. Then there is the purpose that it can send and receive the local emails in a cheaper and quicker manner due to the fiber optics usage. सबको पता है कि फाइबर ऑप्टिक जो है वो मतलब हमारी ट्रांसमिशन में क्विक ट्रांसमिशन में यूज होती है. एक मीडियम है हमारा जो ऑप्टिकल सिग्नल्स के थ्रू वर्क करती है. देन इसकी जो रेंज होती है, रीचिंग कैपेसिटी होती है, वो 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड के हिसाब से होती है metropolitan area network की. Then we are moving forward the terms and the definitions that we have used in my project. Basically, first of all, there is network. नेटवर्क क्या होता है? हमारे पास जनरली जो एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स या ऐसे कह लें कि डिवाइसेस जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस होते हैं जिनको आईपीज असाइंड होती हैं, तो वो आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं तो एक नेटवर्क बन जाता है. दैट वी हैव द सर्वर जो क्या होता है कि कोई भी कंप्यूटर होता है हमारे पास जो अ काइंड ऑफ स्पेसिफिक या हम कह लें कि जो रिक्वायर्ड सर्विसेज होती हैं हमारी वो हमें सर्व करता है. देन देयर इज द वर्क स्टेशन जनरली इज रेफर्स टू द पर्सनस कंप्यूटर. कोई भी बंदा है, कोई भी पर्सन है जो अपना कंप्यूटर यूज कर रहा है, किसी भी किस्म का जो मशीन ऑपरेट कर रहा है, उसको हम वर्क स्टेशन कहते हैं इन टर्म्स ऑफ द नेटवर्किंग. देन देयर इज द वायरलेस टर्म. दिस इज रेफर्स टू टाइप ऑफ नेटवर्क that broadcast and access signal to the workstations. This is allowing transport the laptops and the PCs from room to room while maintaining the network connection continuously. Wireless network is also presents some additional security requirements. तो इसकी ये सिंपल डेफिनेशन हमने लिखी है यहाँ पर कि वायरलेस क्या होता है? जो विदाउट एनी फिजिकल मीडियम के जो है वो कम्युनिकेशन करवाने में मतलब हेल्प करता है. देन देयर इज द इथरनेट. इथरनेट क्या होता है कि केबलिंग हमारा बैकबोन होता है जो हमारा वायर्ड नेटवर्क में हेल्प करता है, जिसकी जो एक रेट होता है, ट्रांसफर रेट होता है, जो डेटा रेट हम जिसको कहते हैं, वो होता है 100 Mbps अप टू. देन देयर इज अ राउटर. सो राउटर जो होता है हमारे पास वो क्या होता है? दिस इज द नेटवर्क से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर, जो एक राउटिंग डिवाइस होता है जो कि वर्क करता है कि एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो भी हमारी डेटा ट्रांसमिट करनी है या रिसीव करनी है या पहुंचानी है कह लें हम, तो वो ये काम करता है राउटिंग का, जो राउटर डिवाइस होता है हमारा.
according to the respective IPs. Then further moving down the architecture of the network. आर्किटेक्चर क्या होता है? जो भी डिज़ाइन होती है, जो भी टोपोलॉजी होती है, जो भी हमने जो है टेक्निक्स यूज़ की हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो भी डिज़ाइन करने के लिए, तो हम उसको आर्किटेक्चर कहते हैं. The organization of in which we have designed the, like you can say, the project. Then there is a switch. Switch is also the a kind of routing device, but it contain less intelligence as compared to the router. So as you can say that switch is the high speed device that receives incoming data packets and redirect them to the destination. Then we have the packet. Packet क्या होता है हमारे पास? Packet क्या होता है कि packet is the formatted unit. Formatted unit होता है of the data carried by the packet switched network. जो भी डेटा हमारी ट्रांसमिट होती है या रिसीव होती है स्पेसिफिकली वो पैकेट्स की सूरत में होती है, तो उनको हम पैकेट कहते हैं इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग. देन देयर इज द चैनल एज वी कैन से दैट के हम जिस तरह लोकल जो हमारी ज़बान है उसमें चैनल क्या होता है, कोई भी मीडियम होता है, तो यहाँ पर भी चैनल एज अ मीडियम रेफर किया जाता है. इधर वो क्या वायरलेस हो या के लॉजिकल हो या जो है मतलब एग्जैक्ट जो हमारा फिजिकल कनेक्शन हो, तो मीडियम हो, उसको हम चैनल कहते हैं. देन प्रोटोकॉल क्या होता है? डिफाइंस रूल्स ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन द नेटवर्क डिवाइसेस. ये एक मतलब स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं अबाउट द नेटवर्क एंड द नेटवर्क डिवाइसेस, उनके दरमियान किस तरह कम्युनिकेशन की जाए, वो प्रोटोकॉल्स होते हैं हमारे. Then DNS which stands for domain name system, जो कि हमारा काइंड ऑफ कह लें कि सर्विस होती है एक सर्वर की. देन देयर इज द आईपी. नेटवर्किंग की वर्ल्ड में आप यही सुनेंगे कि आईपी क्या होती है कि आईपी जो होती है एक स्पेशल जो है यूनिक किस्म का एक कह लें कि नंबरिंग होती है जो किसी भी डिवाइस को लॉजिकली उसकी पहचान होती है, किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस. जिस तरह कोई भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं या मोबाइल यूज़ करते हैं तो उनकी आईपीज होती हैं जो कि कोई भी नेटवर्क आइडेंटिफाई करता है कि ये उसका नेम है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है. आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल. देन जो हमारा इंटरनेट है जो हमारी वो लेयर इन द आईपी टीसीपी और आईपी मॉडल के ऊपर काम करती है अमूमन जो हमारी होती है आजकल. Then in the chapter 2, I have defined the simulation and the modeling concepts. Here it is about कि हमने किस तरह इसके अंदर पूरी टोपोलॉजी इम्प्लीमेंट की है. तो वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा यहाँ पर, लेकिन यह है कि आप वीडियो वगैरह पॉज करके ये पूरी रीड कर सकते हैं. वॉइस ओवर आईपी होती है, हमारी सर्विसेज होती हैं कि मैसेज वॉइस डेटा जो होती है वो किस तरह सेंडिंग और रिसीव की जाती है, वो वॉइस ओवर आईपी होती है, वीओआईपी जिसको हम बोलते हैं. देन देयर इज द नेटवर्क डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स जो हमने यहाँ पर यूज़ की हैं. मेल सर्वर यूज़ किया है, डीएनएस सर्वर, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जिसको हम कहते हैं, या एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होते हैं, उनके हमने सर्वर्स यहाँ पर यूज़ किए हैं. या डीएचसीपी जो होती है हमारा वो वायरलेस उसका कनेक्शन के लिए यूज़ होता है नेटवर्क के अंदर. तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ की हैं. बाकी जो है नेक्स्ट में आपको सिमुलेट करके दिखाऊंगा कि हाउ माय प्रोजेक्ट इज़ एक्चुअल वर्किंग. देन सिमुलेशन एनवायरनमेंट जो हमने यूज़ किया है वो सिस्को पैकेट ट्रेसर है. सिस्को जो है एक कंपनी है जो कि इन चीज़ों से डील करती है. जो हमारा जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है वो इस तरह है कि जो भी वर्क स्टेशन हमने यूज़ किए हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो कैपेबिलिटीज़ है उनके अंदर के जो हैं एक कैंपस से दूसरे कैंपस और दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे कैंपस के अंदर वो इंटर कम्युनिकेट कर सकते हैं. देन मेल सर्वर जो है वो ऑथराइज है जो है मेल टू वर्क ऑल द वर्क स्टेशंस के सब जो हैं वर्क स्टेशंस जो हम यूज़ कर रहे हैं उनके ऊपर कि कहीं भी मेल कोई भी वर्क स्टेशन कर रहा है तो वो उनके अंदर कैपेबिलिटी है. देन फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हमने यूज़ किया है कि कोई भी फाइल सेंडिंग और रिसीविंग का काम हो रहा है हमारे नेटवर्क के अंदर,
ये इस तरह के हमने जो है अपने टोपोलॉजीज के अंदर इम्प्लीमेंटेशन की है। ये एक स्विच है जिसके अराउंड हमने वर्क स्टेशन कनेक्ट किए हैं। देन देयर इज द क्या कह लें कि आप वायरलेस राउटर है, यहाँ पर दिखाया गया है जिस तरह के वायरलेस राउटर वायरलेस डिवाइसेस के साथ एक नेटवर्क क्रिएट कर रहा है जो कि फर्स्ट कैंपस है हमारा। ये पूरी हमने जो है यहाँ पर रिपोर्ट के अंदर अपनी टोपोलॉजी लगाई है। जनरल जो शेप है हमारे सिस्टम का वो इस तरह है। देन यहाँ पर हमने डिफरेंट पार्ट्स जो हमारे कैंपसेस के जिस तरह हमने किए हैं कि जो हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है वो हमने काइंड ऑफ के कैंपस मैनेजमेंट के हवाले से किया है कि एक यूनिवर्सिटी है फॉर एग्जांपल, तो उनके जो हैं डिफरेंट जगहों पर हमारे कैंपसेस हैं, तो उनके अंदर इंटर कनेक्टिविटी किस तरह होगी। तो ये काइंड ऑफ सिमुलेटिंग मॉडल है हमने जो भी डिज़ाइन किया है। ये उसके रिजल्ट हैं जो हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं अपने रिपोर्ट के अंदर। डिफरेंट सर्वर्स जो हमने यूज़ किए हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने सिमुलेशन के अंदर। उनकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर मैंने शो की हुई है। देन द ट्रैफिक एनालिसिस एंड सिमुलेशन रिजल्ट्स हमने यूज़ किए हैं। डिफरेंट 10 टाइप ऑफ सिनेरियोज हमने यहाँ पर क्रिएट किए हैं। जिस तरह स्मार्ट, यहाँ पर सिनेरियो 1 है, स्मार्टफोन यूजर फ्रॉम द फर्स्ट facility of the first campus wants to send the email to his or her friend in the third facility of the first campus। तो ये एक फैसिलिटी है सिनेरियो के अंदर किया क्या कहा गया है कि जो एक स्मार्टफोन यूजर है वो अपने दोस्त को किसी मतलब थर्ड या फोर्थ कैंपस में जो बैठा हुआ है वहां से उसको ईमेल कर रहा है, तो वो एक सक्सेसफुल ईमेल जाएगी। देन कोई भी अगर वेबसाइट वगैरह को मतलब एक्सेस कर रहा है तो उसका जो मटेरियल है वो किसी भी कैंपस में जाकर बैठा है तो उसको वो एक्सेस कर पा रहा है। तो देन ये इस तरह के हमने सिनेरियोज क्रिएट करके अपने उसमें रिजल्ट्स में लगाए हैं। देन जो हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है वो अक्सर जो हमारी टेलीफोन कंपनीज हैं या सेल फोन कंपनीज हैं या कोई भी नेटवर्किंग कंपनीज लाइक जेज वारिद हो गई या यूफोन हो गई या जोंग हो गई, इस तरह की जो कंपनीज हैं हमारी वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर इम्प्लीमेंट करती हैं। तो हमने टेलीफोन्स भी लगाई हैं अपने मॉडल के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर। मैं आपको सिमुलेट करके दिखा रहा हूँ कि विद इन द नेटवर्क, विद इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वो किस तरह आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। Then these all are the resulting section of my project report. Then here is the conclusion that it is successfully implemented according to the results as per the requirements of the course and our instructor as well as. And I would like to thank our instructor. So without the teachers we are nothing. That's true. So we are here at our simulator. This is co-packet tracer and here is the my project, you can say. So first of all we are moving towards the server section. So if I click here, then I reach here in the section of the servers where I have uh, designed different kind of the servers. Here you can say the DNS server is here, server du.com server is here, BIS server is here, DHCP server is here, FTP1, FTP2, and mailing server is also here, and also there is the admin PC uh, reserved or the located in the networking section. So admin have the full authority of the for controlling the whole network. So if we like to say come back from this section, here is the pharmacy section. In the pharmacy section you can say you can see workstations are connected with the switch. Then अगर हम यहाँ से बाहर आए तो different kind of sections हैं जिन कह लें कि यूजेज के हिसाब से नेटवर्किंग सेगमेंट्स हैं, सेक्शंस हैं जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का हिस्सा है। यहाँ पर भी एक वायरलेस राउटर के साथ वायरलेस डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। अब
मैं आपको सिमुलेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने दी हैं टेलीफोन्स। फॉर एग्जांपल हम दो टेलीफोन्स के ओपन कर रहे हैं इंटरफेसेस। सो हियर वी हैव द telephones interfaces, and I'm going to arrange both of these in the sequence. So in the GUI section you can see here is 1050 is the number of this telephone, and 10110 is the you can say the number or the contact or the toll of this telephone set especially. So if we are going to dial 1050 and make a call, here is the ringing out, and from this section we can see the phone is ringing, means from it is indicating us that 1010 this telephone is calling here. So here the phone is connected. इस तरह हमारा जो है कि सिमुलेशन के अंदर आपस में मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर आपस में जो हैं वो कनेक्टेड हैं डिवाइसेस। अब मैं आपको जो है सिमुलेट करके दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल EENG जो लैब है हमारी, सॉरी यहाँ से बाहर है। फॉर एग्जांपल यहाँ से वीडियो हमने उठाया टेस्टिंग के लिए। इस लैब के 6 नंबर पीसी ने यहाँ से कई सर्विस जो है रिक्वायर की DNS सर्वर से, ठीक है। तो ये पहले फेल दिखाएगा, देन इन द सेकंड ट्राई इट इज सक्सेसफुल, मीन्स कि हमारा जो कनेक्शन है वो सर्वर से वो मतलब एक कनेक्टेड हैं पीसीज। डिफरेंट एरियाज में हमारे जो पीसीज पड़े हैं वो डिफरेंट एरियाज में पड़े हुए सर्वर से आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज के हिसाब से वो कर सकते हैं। देन फॉर एग्जांपल if we are so for example as we enter in this section, and from its web browser, as I have entered in the web browser of PC number 6, and we are entering du.com, pressing enter. So after entering the du.com, we have got this result, you can say. So in this website we are finding here the 4 options, especially the options that have been stored in the server. So after clicking the image, we have gotten the image of Cisco. Basically the image was predefinedly stored in the server. So in this sequence our metropolitan area network works from any kind of corner of the network. We can communicate to in other corner of the network without any. So it was all about my project and project report about the you can say about the computer communications and network course. So one more thing I would like to add in this project blog, the applications of metropolitan area network. I'm doing Google here in front of you, and after this the Google is showing me the metropolitan area network can be used in the government services, education networks, healthcare networks, video surveillance systems, ISPs, internet service providing sections. It is widely used. So this was the project that I have shown you. So here is my LinkedIn page. You can connect with me easily, and if you have any kind of queries or questions you may ask, so I will be happy to answer you.
Thank you very much for watching my video and vlog. So meet you in next vlog.